So let's start with Nifty. I don't know whether Nifty will gap up or not, but whatever signs we are getting, probably it might be an gap up. So how to play a gap up? If you don't see continuous three candles making new highs, don't consider that to be a pending day as such, क्योंकि जनरली ऐसे गैप सस्टेन नहीं होते हैं. हो सकता है पूरा दिन मार्केट साइडवेज मूव में चला जाए. सो द लेवल्स यू शुड नोट फॉर अपसाइड इज if market starts trading above 5900, above 5900, there is a gap between 5900 to 16000, approximately 16200 levels. So if market start trading above that gap zone which was created last to last week, अगर हम उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्ली वो गैप फिल हो सकता है on the upside. On the upside. So my level will be 5900, where I'll like to go long again because I'm already calling call spreads. That would be level. On the bottom side, support is around 15600 to 15650 levels. So if market doesn't sustain those gap probably for an hour and goes sideways mode, probably there won't be a trade on Nifty itself for tomorrow. If sustains above 1500 for at least 10 minutes, look for fresh longs, because at 16,000 levels, there are 71 lakh approximately contracts on call side that have an open interest. So they might come to defend it. The second part is about Bank Nifty. Bank Nifty again, levels are same 33,800, which I've already mentioned in my tweet. If it sustains about 33,800, probably the gap zone between 33,800 to 34,000, approximately 34,350 to 34,350 to 34,400 levels. There is a big gap zone. If markets start moving in that direction, then you can take a fresh trade above 33,800. Between that, there will be a small resistance at 20 days moving average, which is placed at 33,200, 34,200. तो ये कल देख के चलना पड़ेगा. नीचे का सपोर्ट वही है जो फ्राइडे को लो मारा था. फ्राइडे के लो को सपोर्ट पकड़ के चलो, तो लेट्स टेक इट दैट एज अ केस ऑफ 33,300. अगर ये सारी चीजें होती है तो मार्केट बुलिश रहेगा. अगर मार्केट वापस वही रेंज में घूमता रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कल सुबह हो सकता है, क्योंकि पब्लिक मार्केट अभी डव को फॉलो कर रहा है, तो उसके बेसिस पे यही निकलता है कि अभी कल सुबह अगर डव 300 पॉइंट नीचे दिखता है तो वापस मार्केट जो गैप अप भी करेगा तो हो सकता है उसमें चला जाए. कमिंग टू फ्यू स्टॉक्स व्हिच आई एम ट्रैकिंग, Bajaj Auto looks very bullish, probably for a target of 4,000, with a stop loss below 3750. Probably it is trading currently at 3820, so your stop should be below 3750. का रिजल्ट भी है बजाज का, बजाज ऑटो का स्पेशली. मारुति इज लुकिंग बुलिश. इफ यू वांट टू गो बुलिश ऑन मारुति, अभी वो शायद कुछ मेरे टाइम फ्रेम्स पर है ना ओवरबॉट में आ रहा है, बट ओवरबॉट रह सकता है क्योंकि एक्सपायरी वीक है. सो मारुति माय ट्रेड वुड बी इफ इट ट्रेड्स अगेन अबव 8400, probably keep a stop below 8200, that was its breakout level. और उसके ऊपर वो probably 8700 8900 ला सकता है. 1800 इस वीक आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो. सो ये दो ट्रेड मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं. सेम टाइम हीरो मोटो वैसा ही लगता है. हीरो मोटो इज ऑल्सो बुलिश, क्योंकि सेक्टर वाइज सिर्फ ऑटो इतना बुलिश हुआ है. And other is Tata Motor. Tata Motor, anything above 410, keep a stop below 400 levels, and let's see what happens on Tata Motors. Upside is open. The other part of the market is banking. If banking doesn't support, because IT took a breather. IT is not into corrective mode. IT took a breather. क्योंकि 15,200 से जो मार्केट को ऊपर लेके आया था वो एक ही सेक्टर था, दैट वाज आईटी. रिलायंस लाया था तो रिलायंस भी कूल ऑफ करने गया. So if Reliance tomorrow again trades about 2,500 levels, your stop should be below 2,400, 2,450, sorry, not 2,400. 2,400 तो बहुत दूर हो जाता है. तो below 2,450 you can keep a stop. 2,432 उसका रिवर्सल लेवल आता है. अगर वहां तक नहीं जाता है तो probably Reliance भी वापस एक छोटा मोटा बॉटम बना के वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकता है. हाँ, गारंटी किसी चीज की नहीं. कमिंग टू अदर पार्ट, बैंकिंग सेक्टर में कुछ स्टॉक अच्छे हैं, कुछ खराब हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आईसीआईसी गोस अबव 710, प्रॉब्ली एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बन गया. टॉप क्या बनेगा मुझे नहीं पता. सो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के, मतलब 400 का एग्जैक्ट मत रखना, 398 399 का रखना. अगर कोई भी राउंड फिगर में बोलता हूँ तो उसके थोड़ा सा नीचे का 1-2 रुपया और लॉस ले लेना, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के चलना.
Axis is not still looking very good, but Kotak, HDFC banks are looking good. HDFC itself is looking good. TCS, Infosys अभी अच्छे नहीं है. बजाज ऑटो में ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा ऐड हुआ है शॉर्ट कवरिंग के लेवल बेसिस पर. मतलब बहुत सारे ऑटो सेक्टर्स में बहुत सारी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आई है. और कौन सा स्टॉक था? बस हाल फिलहाल तो मेरे लिए यही है. If anybody wants to add anything, they can send me a request. And I have Dr. Prashant Malik also over here. So let me take. He won't give a nifty view, but as such, he'll give a general observation what he's observing. And Dr. Sir, कोमल. जी सर. अच्छा, आपका माइक ऐसा चालू दिखा था, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं है. आशु भी है, आशु को भी रिक्वेस्ट भेजा है, कौशिक को भी रिक्वेस्ट भेजा है. If anybody can join in and chip in something. भैया एडिशनली कुछ मतलब जो स्टॉक्स ने अपने नाम लिया है वो करेक्ट मैंने भी ट्रैक किए हैं सारे. सिर्फ एक ही स्टॉक पे आई वांट टू ऐड वन लाइन. एक्सिस बैंक ने वीकली पे अभी तक 620 का सपोर्ट जो उसका मतलब बहुत मल्टी ईयर से चलता आ रहा है वो अभी भी तक होल्ड किया हुआ है. सो एक्सिस बैंक इज वन स्टॉक प्रोबब्ली जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है 615 के आसपास बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के. दैट इज वन पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू ऐड. See, market have to lead now. There are only three sectors with the very good weightage in market. मतलब अभी फार्मा चल जाएगा, फार्मा का वेटेज ही नहीं बेचारा कर क्या लेगा. तो वेटेज जिसके पास है, निफ्टी बैंक में है या फाइनेंशियल सेक्टर उसके साथ जोड़ लो तो वहां पर आता है. अच्छा, इसी बात में मुझे याद आया, बजाज फिनसर्व में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट हुआ ऑलमोस्ट 9% का. तो वो शायद कुछ कर सकता है, तो कल उसमें भी ध्यान देना. बजाज फाइनेंस में भी आया है, तो अगर फाइनेंस सेक्टर चलना शुरू होता है, क्योंकि मैं लार्ज कैप फॉलो करता हूँ, मैं मिड कैप और मैं स्मॉल कैप फॉलो भी नहीं करता, तो मैं उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता. अगर मेरे वही लिस्ट में भी आएंगे ना तो मैं ध्यान नहीं देता. तो सिंपल है कि अगर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस चलता है तो दे आर द फर्स्ट साइंस कि शायद कुछ रिवर्सल आ सके, शायद. हाँ, क्योंकि अभी भी हमने कोई बॉटम नहीं बना है, ये पकड़ के चलना. बॉटम का कंफर्मेशन तब होगा जब 16400 तोड़ देता है, 16800 तोड़ देता है, तो शायद एक बॉटम का कंफर्मेशन है. ये पकड़ लो, एक मार्केट में बाउंस आया है. अभी जब तक बाउंस को कंफर्मेशन लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसको बाउंस ही पकड़ के चलेंगे. इसके लिए कॉशियसली ट्रेड करना, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आज भी खड़े. ऑलमोस्ट 1.10 लाख का 1.10 या 1.20 एफआईए आज भी शॉर्ट बैठा है. सेम टाइम रिटेल उसी को लॉन्ग करके बैठा है. इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. और क्योंकि फ्राइडे को कुछ ऐसा नया डेटा बना नहीं था, तो उसमें कुछ मुझे भी देखने को नहीं मिला कि भैया कौन सा बड़ा पोजीशन कौन बना के बैठा है. ना कॉल में कुछ बड़ा पोजीशन था, ना पुट साइड में कुछ बड़ा पोजीशन था. तो उसमें मुझे भी मैं कुछ डिसिफर नहीं कर पाया. कल हो सकता है, कल क्योंकि फ्रेश डे है, कल सिंपल है, 5900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 16000 वाला कल प्रॉब्लम में आ सकता है. तो 16 को डिफेंड करने के लिए कोई अगर आया, 16 को अगर कोई डिफेंड करने के लिए आया, 60,000 कॉल को डिफेंड करना है, तो एक डिप ला सकता है. एंड दिस डिप शुड बी यूज्ड टू बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15600. 15600 तोड़ देता है तो वापस वही सेल द राइज हो जाएगा मार्केट. या गुरप्रीत राजी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. जय हिंद अमित जी और बाकी सारों को जय हिंद. या प्राजी, जय हिंद एंड सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. सर एक्चुअली वीकेंड पे मैं थोड़ा सा निफ्टी के ना चार्ट्स डीपली स्टडी कर रहा था, तो मंथली चार्ट में ना मुझे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज नजर आई, वो मैं शेयर करना चाहूंगा. शायद कंफर्मेशन मिल जाए आप लोगों से भी. एक्चुअल में जो लास्ट ईयर जहां से निफ्टी ने चलना स्टार्ट किया था आफ्टर बजट, तो बजट के बाद इस लेवल पे ना बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुई थी मार्केट. ऑलमोस्ट 14,800 से लेके, यानी कि 14,800 से लेके 15,800 के बीच में बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुई थी यहाँ पर. तो उसका एक ना पिवट पॉइंट बन रहा था 15,378.3 समथिंग. तो वो मैंने लास्ट 2 हफ्तों से वो ट्वीट भी कर रखा था उस लेवल को. तो वो जो लेवल है ना, वो उसके बिलो 3 दिन रह चुकी है नीचे. तो जो मेरा जो एक्चुअली मैंने कोई ज्यादा टेक्निकल स्टडी नहीं किया, मेरे खुद के बनाए हुए ग्राफ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मुझे ये बड़ा बेयरिश साइन लगा था. बट उसके बाद जो रिकवरी आई,
जस्ट एकदम बड़ी फास्ट रिकवरी आई और 400 पॉइंट और 500 पॉइंट की रिकवरी आई 3 दिन में पिछले, तो उससे वो थोड़ा सा निगेट हो गया और जो एक्सपायरी वाले डे पे उस लेवल को दोबारा ब्रीच किया निफ्टी ने फॉर जस्ट इंस्टेंस, यानी कि 10 या 15 सेकंड के लिए उस लेवल को तोड़ा और उसके बाद एकदम बड़ा शार्प बाउंस आया। तो वो जो मैं प्रीवियस स्टडीज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बड़ा ना कंफ्यूजिंग सा है कि वहां से या तो बहुत ज्यादा बुलिश सिग्नल दे रहा है वो, या तो यहाँ से बहुत ज्यादा बियरिश लगेगा। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करूंगा यहाँ से, बट यहाँ से ना या तो रिवर्सल आएगा बहुत जबरदस्त वाला, या प्राइस यहाँ से कैन यू रिपीट दोस लेवल प्लीज? वो लेवल जो था आपका राउंड फिगर में बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, वो एग्जैक्ट नंबर किसी को याद नहीं रहता। एक्चुअली राउंड फिगर में मैं बिलीव नहीं करता, मैं एग्जैक्टली जो फिगर निकलती है ना तो उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 15378.30। अब कई लोग बोलेंगे ये 0.30 क्या है, जिससे मैंने स्टडी सीखी है, जिससे मैंने पढ़ाई सीखी है, तो उसने मुझे बोला कि 0.05 का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यू है अगर आपने टेक्निकल स्टडी करनी है। तो जो वो पिवट पॉइंट बन रहा है वो ऑलमोस्ट मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट वो जो पॉइंट था पहले तो 3 दिन उसके बिलो बंद हुई है, ठीक है, वो बेरिश सिग्नल दे रहा था, बट उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 दिन उसके ऊपर बंद हुई है उस लेवल के, और उस लेवल को इंट्राडे में उसने बड़ा शार्पली ब्रीच किया और बड़ा शार्पली उससे बाउंस बैक लिया। तो वो एक तरह से डिसीव करते जैसे धोखा देके चले गए, तो वो मे बी अपसाइड पे भी धोखा हो सकता है और डाउन साइड पे भी धोखा हो सकता है, बट मैं अभी उसको वेट एंड वॉच करूंगा। तो उसके बाद मैंने जो 2 लेवल जो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग निकलते हैं, एक तो 158334, पहला लेवल तो ये, अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक थोड़ा सा वो न्यूट्रल जोन में आ जाएगा मार्केट, कि बेरिश भी नहीं है और बुलिश भी नहीं है। और 16480 के बाद थोड़ा सा, यानी कि ये लगा लो कि 70-30 का रेशियो हो जाएगा, 70% बुलिश साइड हो जाएगा मार्केट। तो ये मेरा व्यू है, बट यहाँ पर मैं लोगों को भी और खुद भी मैं बहुत कॉशियस होकर ट्रेड कर रहा हूँ इस लेवल पे, क्योंकि ये बहुत, जो मैंने आज बहुत लंबे चार्ट रीड किए, ऑलमोस्ट मैंने पिछले 16-17 साल के मंथली चार्ट रीड किए, तो मुझे ना काफी नई चीजें देखने में मिली। तो वो मैं अभी इस स्पेस में नहीं डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा सा यानी कि सेंसेशन वाली बात हो जाएगी, तो वो मैं नहीं करूंगा शेयर। बट यहां से मार्केट मुझे या तो बहुत ज्यादा अपसाइड नजर आ रहा है और जाएगा बिल्कुल रिलेंटलेसली, यानी कि किसी की परवाह नहीं करेगा, और अगर नीचे जाएगा जाएगा स्लोली बट बहुत डीपली नीचे जाएगा। बस ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, बस यही शेयर करना था मैंने। थैंक यू वेरी मच। So any particular sector or stock, like you said, you've seen multi-year charts today. So if you want to talk about any particular sector. सेक्टर वाइज तो मैंने इतना ज्यादा डीपली स्टडी नहीं किया सेक्टर वाइज, बट ये कि मुझे ये लगता है कि आईटी यहाँ से थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मे बी उसका बॉटम बन चुका है, मे बी, बट थोड़ा सा डाउट है। अगर आईटी चला तो शायद नीचे नहीं जाएगी मार्केट, फिर वो अपसाइड ही जाएगी। अगर आईटी यहाँ से नीचे जाता है तो वो मार्केट के लिए बड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि आईटी इस टाइम, क्योंकि डॉलर भी अप्रिशिएट हो रहा है, तो वो आईटी के लिए बढ़िया है, ठीक है, और ऑलरेडी करेक्ट भी बहुत ज्यादा हो चुका है वो सेक्टर। तो अगर आईटी चला तो मे बी ये अपसाइड जाएगी मार्केट, अगर आईटी ने अंडर परफॉर्म किया तो मार्केट शायद ऊपर ना जा पाए यहाँ से। All right, sir. Thank you. So if I have to add something, what I like to add is कि generally I don't discuss about Dow Jones और S&P और Nasdaq, क्योंकि अभी मार्केट इतना कोरिलेट कर चुका है ना, अगर वो नहीं देखेंगे तो मूर्ख कह लेंगे। हमेशा मैं नहीं देखता, बट मुझे देखना पड़ा मजबूरी में। So Dow Jones have broken about 31,000 spot levels. I'm not talking about future levels. Same time Nasdaq have broken above 11,250. So that is also giving me a bullish signal कि at least a short term bottom might be in place. Short term might, गारंटी किसी चीज की नहीं। मैं जो बोलता हूँ उसी, मैं खुद गारंटी नहीं ले सकता, तो आप तो भूल जाओ कि मेरे वर्ड्स पे कुछ काम करना। तो माइट भी S&P को अभी भी ब्रेकआउट देना बाकी है, रसेल ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया है।
बट जो दो सिग्नल मुझे कहीं से आ रहे हैं ना, वन इज फ्रॉम DXY, मतलब डॉलर इंडेक्स एक दिखा रहा है कि शायद टॉप आउट हो रहा है, एंड द बिगेस्ट इंडिकेटर दैट इज शोइंग मी इज 10 years बॉन्ड यील्ड. 10 years बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 3.50 से 3.04 या 3.05 तक आ चुकी है. सो दैट हैव गिवन अ वेरी गुड करेक्शन. अभी यहाँ से अगर थोड़ा 3 के नीचे सस्टेन हो गया, probably it might head towards again a 10% डाउन लेवल. सेम टाइम अभी क्रूड सपोर्ट बना रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है. क्रूड ने एक ब्रेकडाउन दिया है डेली चार्ट्स पर. अब वो क्रूड ब्रेकडाउन कर देगा तो बेटर है अपने लिए कि क्योंकि हमें तेल जो ऑयल आ रहा है वो कम रेट पर मिल जाएगा. चाहे हम रशिया से भी ले रहे हैं तो जहां से भी ले रहे हैं, क्योंकि रशिया तो 100% सप्लाई नहीं कर रहा अपने को, तो अगर वहां से भी हमें कम रेट में मिलेगा तो इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर अस. या गुरप्रीत जी. सर मैं यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू रखूंगा. एक्चुअली जो क्रूड ऑयल अगर नीचे जा रहा है ना, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा साइन ये देगा कि शायद वर्ल्ड मंदी की तरफ जा रहा है या रिसेशन की तरफ जा रहा है. तो मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू रखूंगा. क्रूड मेरे हिसाब से 105 से लेके 112 के बीच में रहना चाहिए और अपसाइड ही रहेगा. शायद वो इस साल तो शायद मुश्किल ही है कि 100 तोड़ दे, बाकी सब कुछ पॉसिबल है. प्राजी, वी आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल. हम नेट है ना, इंपोर्ट करते हैं सारी चीज. तो दुनिया के लिए खराब होगा, हमारे लिए अच्छा होगा वो चीज. हमारे लिए तो बट सर इकोनॉमी तो अच्छा सारी होगा एक ना. दूसरे से जुड़ी हुई है ना. अब जुड़ी तो सब कुछ एक दूसरे से ही है. अभी वो तो वो आज मैं देखता हूँ कि डव ऊपर बंद हुआ, वो डव का फ्यूचर 200 पॉइंट नीचे, तो ये 700 ऊपर गया था और 2 से नीचे आया. तो नेट नेट 500 पॉइंट का इफेक्ट तो इंडियन मार्केट में आना चाहिए, तो आता ही नहीं. तो ये कोरिलेशन भी मुझे नहीं बैठ रहा. ओवरऑल आई डू नॉट इवन डाउट अबाउट इट. बट रोज का रोज कोरिलेशन, अभी वो ऐसा टीवी वाले बताते हैं कि रोज का कोरिलेशन हो गया, अभी डाउ ने 50 पॉइंट का टिप दिया तो इंडियन मार्केट टिप दे दिया. यार ये क्या चीज है यार. तो एक काम ही करते हैं ना, हम डाउ फ्यूचर ट्रेड करना शुरू करते, तो इंडियन मार्केट निफ्टी बंद कर देते ट्रेड करना. हम कहीं ना कहीं अकाउंट खुलवा देते हैं इंटरएक्टिव ब्रोकर के पास, जो हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी देगा. क्या कोई निफ्टी में दिमाग खराब करे अपना. तो कैसा है कि बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो पब्लिक देख रही है उसके अगेंस्ट भी हो रहा है, जो पब्लिक समझ रही है उसके अगेंस्ट भी हो रहा है, जो पब्लिक को चाहिए वो हो नहीं रहा. तो इन सबको कोरिलेट करना है ना इन रियल टाइम. तो इसके लिए अपन निफ्टी ट्रेड करते हैं, इसके लिए अपन निफ्टी के लेवल की बात करते हैं. तो कभी कभार मैं डाउ जोन्स की बात करता हूँ. और एक और चीज ऐड करता हूँ, 30 जून को मंथली क्लोजिंग है. हाँ, 30 जून को मंथली क्लोजिंग है. निफ्टी का जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज आता है, मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था, when निफ्टी वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 15200 15300, कि भैया ये इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं. मैंने उसको मार्क भी करके भेजा था. अगर 20 डेज 20 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे देता है, तो मतलब जो उसने नीचे का एक जो ब्रेकडाउन दिया था ना, वो मंथली पे सस्टेन नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पर एटलीस्ट. अब उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता. करंटली दैट लेवल इज अप्रोक्सीमेटली एट 16000 लेवल. अगर उसको ब्रेक करके नीचे खड़ा रहता है, यस, मार्केट इज इन अ वेरी बैड शेप. इट कैन करेक्ट 10 20 30 40% व्हाटएवर इट वांट्स टू, क्योंकि हिस्ट्री में इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं. जी या प्लीज. हाँ सर, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. एक्चुअल में जो आपने बात बोली है ना, मैं उसको पूरा इंडोर्स करूंगा, उस बात को कंफर्म है वो बात, क्योंकि ये बहुत, यानी कि जो ये इस मंथ की क्लोजिंग होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होगी. वो 16,000 के ऊपर ही होनी चाहिए क्लोजिंग, अदरवाइज मार्केट का यानी परफॉर्मेंस अपसाइड के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी मार्केट. तो 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है. जी उसमें ना लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है मार्केट वो बिगड़ जाएगा. कई बार 2011 2015 2017 आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, कई बार है ना ऐसा क्लोज भी दिया उसने, बट उसने है ना जो मेजर ब्रेकडाउन दिया ना 20 मतलब 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे, वो 2 बार जो मैंने पढ़ा, जो मैंने निफ्टी पे डाला, मैं फिर सेंसेक्स पे भी डाल के देखता हूँ. मेरे पास सेंसेक्स का डेटा नहीं था इतना बड़ा, तो मैंने किसी को बोला भैया मुझे सेंसेक्स के डेटा पे डाल के देना. उसने आज तक जवाब नहीं दिया. तो जो इंसिडेंट मैंने देखा ना, क्योंकि अगर मैं चेक करने जाऊंगा 20 मंथ का मूविंग एवरेज, तो 94 से तो मार्केट चालू. उस टाइम 2000 तो लिक्विडिटी भी नहीं थी. 2000 तक सब ऐसे ही चलता था. तो जब से निफ्टी का फ्यूचर आया, निफ्टी का ऑप्शन आया,
तब से थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मार्केट में आया। आज तो इतना लिक्विडिटी हो गया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं उस डेटा को चेक करता हूँ ना कि जब से लिक्विडिटी आया मार्केट में, थोड़ा बहुत जब से ऑप्शन भी चालू हुए, तो उसमें मुझे 2 इंसिडेंट दिखे सबसे बड़े, where market have crashed 40 to 50% below 20-month moving average. One was 2008 and the other was 2020. इसके अलावा ना मार्केट ने 2-5% नीचे गिर दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, वापस आके खड़ा हो गया और वहां से जो रैली मारा उसने, हम जब बॉलिंजर बैंड पढ़ते हैं ना, बॉलिंजर बैंड में सिंपल लिखा है, उसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया, सस्टेन कर रहा नहीं कर रहा, 1-2 महीने सस्टेन करेगा, सब पब्लिक बेचने आ जाएगी और उसके बाद वो अचानक ऊपर चला जाएगा और सबका माल काट के निकल गया और फिर नया हाई मार देता है। So even we have seen that those incidences. So whether it is repetition of 2008 or 2020, it's very early to say those kind of things. क्योंकि हर 2 साल में या 5 साल में ना मार्केट 50% नहीं गिरता है, ये तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। आप डाउ जोन्स की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें भी लिखा है साफ साफ, डाउ जोन्स का चार्ट खुद बोलता है कि हमेशा में नहीं गिरता इतना बड़ा। मुझे तो किसी ने चार्ट भी किया था, तो उसमें सिंपल था कि S&P का जो करेक्शन होता है, डाउ जोन्स का जो करेक्शन होता है, दैट डजंट लास्ट on an average more than 18 months. On an average more than 18%, 18 months with a drawdown of almost 25 to 30%. वो उसने ऑलमोस्ट करेक्ट कर दिया। नेस्डेक तो नया है, तो नेस्डेक कोई बहुत पुराना इंडेक्स नहीं। जो डाउ जोन्स की हिस्ट्री करते हैं ना, तो डाउ जोन्स की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वो सस्टेन नहीं करता है। जब सस्टेन करता है तो वो 10 साल में एक बार करता है, नहीं करता। बट वो 10 साल तो एक बार बीत गया ना 2020 में, अभी इसका नया क्या आएगा, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। सर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू रखता हूँ इसमें। एक्चुअल में जो 2020 का जो फॉल था ना, वो हम उसे फॉल नहीं बोल पाएंगे ना, वो बियर मार्केट थी, वो एक फ्लैश क्रैश था, जस्ट फ्लैश क्रैश। ये लगाओ कि आप ऑलमोस्ट वो 45 डे भी सस्टेन नहीं रहा, 45 ट्रेडिंग डेज में, यानी कि वो जितना नीचे गया ऑलमोस्ट उतना ऊपर आ गया। यानी कि आप ये लगाओ कि 23 मार्च को उसने लो लगाया और उसके बाद 21 नवंबर को उसने ऑलमोस्ट उसी लेवल पे दोबारा रीगेन कर गई मार्केट। तो वो ऑलमोस्ट 6 महीने तक भी सस्टेन नहीं रह पाई। तो उसको मैं थोड़ा सा यानी कि डाउटफुल मानूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में आज तक कभी इस टाइप का, मैंने जितने भी पिछले 20 साल के चार्ट पढ़े हैं, तो मैंने ऐसा इंसिडेंस नहीं देखा है कि इतना शॉर्ट टाइम के लिए नीचे गई हो और मार्केट और एकदम इतनी फास्टली ऊपर आई हो, और जस्ट 8 महीने के अंदर उसने एक नया हाई भी लगा दिया। यानी जनवरी 2021 में उसने ऑलमोस्ट नया हाई लगा दिया, 12,800 कुछ लगाया उसने। तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है उस वजह से। तो तभी मैंने ये बोला जो 15,378 का लेवल है, वो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मैं फॉलो करता हूं। तो वहां से मार्केट में ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, बट ये कि मार्केट रहेगी नीचे बट वो दिखेगी अपसाइड, यानी कि वो लोगों को बेवकूफ बनाएगी मार्केट बस। बट अगर 16,000 के ऊपर जाती है मार्केट, क्लोजिंग देती है जून मंथ, तो बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगी मार्केट। अब ये नहीं पता कि वो कितने टाइम के लिए होगी, बट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगी मार्केट। जी 16,400 ना? यस 16,400, यानी 16,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई, और 400 कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम 100-200 पॉइंट का मार्जिन दे सकते हैं मार्केट को, क्योंकि जो डाउन लेवल है उससे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर रहेगी, 1000 पॉइंट ऊपर रहेगी। जो डाउन लेवल है 15,378 का, ऑलमोस्ट उसके 1000 या 900 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देगी मार्केट। और वो 3 बार डिसाइसिवली क्लोज भी हो चुका है उस लेवल के नीचे, और इंट्राडे में उस लेवल को ब्रीच भी किया और वहां से बहुत रिस्पेक्टफुल अपसाइड भी आई है। तो मैं उसको बड़ी रिस्पेक्ट दूंगा कि वहां पर ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है, शायद वर्ड को मैं यूज करूंगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% चीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। All right, sir. Harsh, welcome, and we also have Vivek, sir. So, if you want to share your views. Yeah, hi. Yeah, we're good. So just been listening to hi, Aman bhai. Been listening to you and Gurpreet ji. So
following up similar views, I think जैसे we've been talking since last week, I still hold that view कि IT is the predominant sector which I am looking at this time. It was leading and was also pulling somewhat stabilizing. So on like a hourly kind of system that I run, which is little higher time frame, उसमें I have no signal right now. But in the 30-minute, it is bullish. So there is the market is like showing some signs of turning on the smaller time frames, and basically again it's not confirmed bullish sort of from a technical standpoint. Also on higher frames, I think 15900 950 can be a resistance area also, which I'm following some of the other speakers and all एंड ट्रेडर्स. एक जन ने काफ़ी अच्छा मार्केट प्रोफाइल पे पोस्ट किया था, एंड आई थिंक 15950 के ऊपर ही गया तो बुलिश पॉसिबिलिटीज ओपन, बट दैट मे नॉट बी इजी टू टेक आउट. Again, anything can happen. We are only talking probabilities, so it looks a little more weighed on bullish side right now, but we'll see. We'll watch and see. Again, trailing stop loss obviously as per system is what is the only thing that can save. So that is something you have to adhere to. Another very interesting thing Amit bhai is reading ki basically ye and Kumar ki banking has generally not performed too much for long now. मतलब वो प्री कोविड लेवल्स पे आ गया है. तो some of the I think fundamental side people, जैसे एक नूरेश का बहुत अच्छा रिपोर्ट था. नूरेश का उसने रिपोर्ट शेयर किया इसमें. Vivek, हाँ even हाँ हाँ मेरे भाई. even before you said that, na, I was going to quote that statement. अच्छा कि okay. नरेश भाई ने इतना अच्छा Correct. प्रेजेंटेशन दिया ना, मैं Right. सुबह उठा था तो जैसे उनका देखा और हाँ. किसी ने तारीफ करी थी उनकी, और नरेश भाई तो मैं फॉलो करता हूँ इतने टाइम से. Absolutely. नरेश भाई का देखा था, मैं सब कुछ गया भाड़ में, सबसे पहले लैपटॉप खोला, उनका पढ़ा आराम से. Right. और उनको Right. वो बेसिक डेटा की बात करते हैं, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है. Yeah. और वो नरेश भाई को अगर आप नहीं फॉलो करते तो नरेश भाई को फॉलो करना, उनके हाँ. ट्विटर हैंडल पर दो. वो पीपीटीज इतने प्यारे बनाए उन्होंने, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बनाए, विद एकदम चार्ट, absolutely. डेटा and everything there. Yeah, Vivek, carry on, please. And the thing is, he comes out with these reports very rarely, as these big broad reports. Conviction wale he comes out only not very frequently, and generally like completely backed with data and एकदम simple. मतलब जैसे आपको एकदम crystal clear में वो view देता है. So please read that report. It's in public domain. So if the banking starts taking off, and again अमित भाई इंटरेस्टिंग थिंग था उसमें, आपने देखोगे खाली 2-3-4 बैंक्स ऐसे ही है जिन्होंने एक्चुअली पॉजिटिव टू या फ्लैटिश रहे या पॉजिटिव है. बहुत सारे बैंक्स एक्चुअली काफी नेगेटिव रहे हैं. बैंकिंग starts contributing again, then NIFT and IT does not, let's say, misbehave or whatever, मतलब behaves positively or continues, then Nifty can using I think Vivek, I think your voice is breaking, or is it only me who is facing this? Kumar, that's all I have to say at this point. So Okay, I so don't know thank if you. you can Maybe hear me. Yeah, thank you. once you have a better network, please Okay, sure. Yes, continue. yes. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. आजा इलियट, वो इलियट थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, तू जब बोलता है ना तभी गिर जाता है. भाई तू बुलिश नहीं मत, तू जब जब बुलिश बोला तो मार्केट में वो मार्केट का बनता था. Okay, so But I use, and there is no doubt about it. yeah. So मीन्स मेरा पहले से बहुत क्लियर व्यू था, एंड और मैंने पहले ये बात डिस्कस भी की थी
15,700 के नीचे एक बार ब्रेकडाउन आना चाहिए, कैपिटुलेशन होना चाहिए। वहां पे सब लोग बेरिश हो जाएंगे और शायद डिलीवरी भेज देंगे, जो भी है। और फिर वहां से वापस एक बार रिवर्सल आ जाएगा ऊपर के साइड में, तो दैट प्रोबेबली विल बी एंड ऑफ करेक्शन जो अब 8-9 महीने से चालू है। अभी ऑब्वियसली एक वीक में ही ऑलमोस्ट बैक टू 15,700 आया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 15,700 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं होता है। अगर वापस नीचे जाता है तो फिर ऑब्वियसली देन विल हैव टू डिस्कट कि शॉर्ट टर्म में शायद बॉटम बन चुका है या नहीं बन चुका है। बट इफ वी सस्टेन अबाउ 15,700, और अभी शॉर्ट टर्म में एकदम 15,870 रेजिस्टेंस है, 15,870, 15,900 अबाउ दैट 16,200 तक जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ लेवल्स टू क्रॉस ऑन अपसाइड, तो एकदम से बहुत हेवीली बुलिश बोलना अभी के लिए मीन्स इट विल बी वेरी आई मीन वेरी अर्ली टू से दैट के हाँ हो गया बॉटम, नहीं हो गया। सो ऊपर के सारे लेवल एक बार ब्रेकआउट आने लगेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि शायद हाँ मीन्स जो करेक्शन है लास्ट 8-9 महीने से चालू है वो खत्म हो रहा है। सो फर्स्ट साइन वुड बी 15,900 के ऊपर जाके 16,200 के मीन्स वहां पर जाके कहाँ तक रिट्रेस हो रहा है वो देखना है। वापस रिट्रेसमेंट में 15,870, 15,800 के नीचे नहीं जाता है, सस्टेन होता है, और देन अगेन वी स्टार्ट मेकिंग हायर टॉप हायर बॉटम, देन प्रोबेबली वी कैन स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ शायद थोड़ा मीन्स अभी जो फॉल्स ब्रेकडाउन आना था 15,700 के नीचे, वो फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, सब पब्लिक बेरिश हुआ, और वो मीन्स वो दिस कुड बी अ बुलिश साइन। बहुत सारे मैक्रोस फैक्टर में जो देख रहा हूँ मीन्स डॉलर, बॉन्ड यील्ड्स, और मीन्स ऑल द वर्ल्ड मार्केट्स, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में एक ही साइन दिखा रहा है कि जो भी करेक्शन चालू था वो मोस्टली करेक्शन खत्म होने को आया है, और एक पॉजिटिव बाउंस आया है। तो ये बाउंस है या मीन्स क्या है वो तो ऑब्वियसली इतने जल्दी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या है। बस एक बाउंस है कि सच में करेक्शन खत्म हो रहा है जो लास्ट कई महीने से चालू था। विल हैव टू सी दैट, बट एटलीस्ट देयर इज अ साइन फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स ग्लोबली, डाउ पे, नैस्डैक पे, S&P पे, चाइनीज मार्केट पे भी देख रहा हूँ मैं। मीन्स आई नो हम लोग इंडिया पे है तो मीन्स बाकी मार्केट के मीन्स बात करने से क्या फायदा है, लेकिन जो फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर्स जो डिस्कस करते हैं कि ग्लोबली इतने सारे प्रॉब्लम्स चालू है, तो मैंने ग्लोबली सारे मार्केट्स देखे, सारे मार्केट्स में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन का फेज शायद खत्म होने आया है ग्लोबल मार्केट्स में। ओवरऑल जापान, डैक्स जर्मनी में, चाइना मार्केट, और यूएस मार्केट्स। सो ओवरऑल पॉजिटिव ही दिख रहा है ग्लोबल फैक्टर्स देख के, और बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, वो सब देख के। क्रूड भी नीचे आ रहा है, नेचुरल गैस नीचे आ रहा है, और कमोडिटीज में बेस मेटल के प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। कॉटन यूएस में, व्हीट मीन्स यूएस के इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं तो यूएस में भी बहुत सारे कमोडिटीज के प्राइजेस गिर रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन का डेटा मीन्स कूल ऑफ हो जाएगा। डेटा हमेशा क्वार्टर के एंड को आता है, तो मीन्स इसलिए मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल हमेशा एक क्वार्टर पीछे रहता है। सो वो डेटा तो नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, सितंबर एंड को आ जाएगा जब डेटा, तब तक शायद मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड ले चुका हो पॉसिबल है। सो आगे के ऊपर के सारे लेवल्स एक बार ब्रेकआउट करके हम लोग सस्टेन होने लगे तो ही हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ ये एक सस्टेनेबल बॉटम हुआ है। अदरवाइज if we go below 15,700, 15,670 क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर शायद शॉर्ट टर्म वापस डाउनसाइड आ सकता है। दैट इज अबाउट शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ओके। एक सेकंड इंटरप्ट करता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। टुडे इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, हिमांशु का बर्थडे आज, सो आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम पर्सनल में कुछ भी एक दूसरे को बोल लेंगे, बट आज मेरे भाई का बर्थडे है, सब पार्टी मनाओ, जितना भी लाए। यस, हैप्पी बर्थडे हिमांशु। नहीं, उसको जितना भी लाए डीएम में मैसेज डाल दो, वो सबका कल बिल बढ़ के जाएगा। ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, उसको बर्थडे गिफ्ट दे। बर्थडे गिफ्ट में तो निफ्टी में रैली ही करा दो ना। वो निफ्टी पे रैली कर रहा भाई अमित, मैं तो तेरा वही गिफ्ट है एक ही करूंगा अभी तक।
So, my father's birthday Okay. today, just that. हाँ Parents, nothing more. After Harsh, we'll take हाँ one call from Himanshu. आज इसका बर्थडे का कॉल, एक साल बाद उस कॉल को रिव्यू करेंगे, एक इसका बर्थडे स्पेशल लेके जाएंगे इससे, ठीक है? पसंद नहीं करेगा तो गाली नहीं सुनेगा, उसका पैसा है भरेगा, मतलब स्टॉप लॉस प्रॉफिट हमारा। Okay. So yeah. So means overall global macros factors में means थोड़ा positive signs ही आ रहा है मार्केट में, बट ऑब्वियसली बहुत अर्ली होगा बोलना कि मींस मार्केट का करेक्शन हो गया, बॉटम हो गया, वो मींस जब तक ऊपर के लेवल नहीं टूटते। सो आई विल हैव टू वेट फॉर दैट। और मींस अपने यहाँ पे सारे इंडेक्सेस देखेंगे तो ओवरऑल रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आया है। आई मीन कंसिडरिंग जो कोविड के बाद रैली आया था, वो रैली का ओवरऑल रिट्रेसमेंट जो अभी आ रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में, मेटल्स में, आईटी में, बहुत सारे इंडेक्सेस में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आके अभी शॉर्ट टर्म में एक वीकली पे सारे इंडेक्सेस मेटल छोड़ के एक बुलिश थोड़ा सा फॉर्मेशन दे रहे हैं। स्मॉल कैप में बुलिश हैमर है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई पे, और निफ्टी 500 इंडेक्स में है, आईटी में है। सो मींस ऑब्वियसली अभी एक वीकली कैंडल से हम लोग तो बोल नहीं सकते कि क्या बुलिश है, तो आगे के कैंडल्स भी मींस आगे फॉलो थ्रू एक्शन आना चाहिए, फॉलो थ्रू अपसाइड आना चाहिए, तो ही हम लोग बोल सकते हैं। बट एटलीस्ट साइन इज देयर, एक छोटा सा साइन है ओवरऑल अपने सारे इंडाइसेस पे। सो आगे जाके बस वही देखना है कि रैली सस्टेन होता है कि वापस डाउन साइड आता है। वो बस देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डाउन साइड भी नहीं देख रहा मैं, अगर मींस डाउन साइड वापस आता है तो भी, बिकॉज जैसे अभी नूरेश का रिपोर्ट की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली वहां पे मींस मैंने भी देखा रिपोर्ट, तो ओवरऑल हम लोग देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स में फॉल आ गया है ऑलरेडी। बहुत सारे स्टॉक 12,000 के लेवल पे है, 12,500 के। इंडेक्स में हमें दिखाई नहीं देता है वो, बिकॉज इंडेक्स हैवी वेट से चलता है, फिर मैनेज होता है इंडेक्स, सो इंडेक्स में पेन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ब्रॉड मार्केट में ऑलरेडी वी आर एट 12,000 लेवल्स, कुछ कुछ तो उसके भी नीचे है। तो मीन्स इंडेक्स देख के हम लोग मानेंगे कि नहीं करेक्शन हुआ ही नहीं है, तो वो गलत है। सो इंडेक्स देख के थोड़ा मीन्स डोंट बी फूल्ड बाय इंडेक्स। ब्रॉडर मार्केट में सबको पता है पोर्टफोलियो सबके डाउन है। सो लेट्स सी क्या होता है। मीन्स विल हैव टू सी, वेट एंड वॉच। एकदम से कंक्लूजन तो नहीं है, लेकिन मेरा जो आई मीन पहले से जो था एक्सपेक्टेड वो हुआ है, तो ऑफ कोर्स आई हैव अ पॉइंट टू से यस, प्रोबेबली वी आर बॉटमिंग। दैट्स इट। हर्ष, बैंक निफ्टी कौन बताएगा? हाँ, बैंक हम निफ्टी में 34,300 तक जा सकते हैं हम लोग, अगर वी गो अबाउ 33,800 के ऊपर, अप टू 34,300 तक का दिख रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में मैं कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ वाइज बैंक निफ्टी बेटर देन निफ्टी, बिकॉज वो आई मीन जो मार्च का लो था वो तो ब्रेक नहीं हुआ है। सो ऑब्वियसली हाँ, और वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस एज इन इंटर मार्केट डाइवर्जेंस है। निफ्टी ने मार्च का लो ब्रेक किया था और बैंक निफ्टी ने नहीं किया था। दैट इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, वी से इंटर मार्केट डाइवर्जेंस। सो मींस देखना पड़ेगा। मींस इट्स वेरी अर्ली टू से कि मींस बॉटम हो रहा है नहीं हो रहा है। आई विल वेट एंड वॉच। Harsh, can you repeat that point of intermarket divergence एक between मिनट Nifty and कोमल Nifty? कोमल कोमल मैं बताता हूँ इंटर मार्केट क्या होता है। पब्लिक को इंटर मार्केट नहीं समझ में आता रहेगा। इंटर मार्केट हो गया, फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैकिंग निफ्टी, यू आर ट्रैकिंग बैंक निफ्टी। निफ्टी एक अलग, निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, निफ्टी के बहुत सारे अलग सेक्टर चलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो, फार्मा, एनर्जी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और बहुत सारे इंडेक्स है। ऑलमोस्ट 28 सेक्टर्स कवर करता है, 28 टू 29 सेक्टर्स कवर करता है वो। उसमें स्मॉल कैप 100 आ जाएगा, स्मॉल कैप 500 आ जाएगा। तो हम कंपेयर करते हैं ना रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए, तो बेंचमार्क रखते हैं निफ्टी को। निफ्टी से कौन सा सेक्टर ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से कौन सा सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है।
ये हो गया आपका इंटर मार्केट एनालिसिस, मतलब जो हमारे मार्केट में हमारे कंपोनेंट्स है हम उनको जाके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटर मार्केट कि भैया अगर निफ्टी 2% चला है तो कौन सा सेक्टर ऐसा था जो उससे 2% से ज्यादा चला है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हैव गिवन रिटर्न ऑफ 2%, which are the sectors which have given 4% return, which have given return of 6%. We are outperforming market compared to Nifty, so you should focus on them. So this is top approach. Again, in those sectors, you need to find the stock which are outperforming the benchmark stocks itself. Say for example, Nifty have rallied 2%. The top stocks are not performing, but those stocks like Maruti, Bajaj Auto, Hero Moto are performing. Like TVS Motor is performing. Like Ashok Leyland is performing. Those are your top leaders. Like M&M at life high. Like ITC, only 5% away from its life high. Not life high, sorry. It's 52-week high. Like Reliance, it is an outperformer. All in all. So that is how we track this. That is how we track all these things. So ये हो गया आपका इंटर मार्केट। इंटर मार्केट क्या हो गया कि जहाँ अनकोरिलेटेड मार्केट है अपने से। अब अनकोरिलेटेड तो कोई भी नहीं होता अपने से, सब कोरिलेटेड ही मार्केट। तो हम कहीं से कुछ मंगाएंगे, कहीं से कुछ करेंगे, क्रूड कहीं से मंगाएंगे, गोल्ड कहीं से मंगाएंगे, वो कुछ और करेंगे, वो हो गया इंट्रा मार्केट। इंट्रा मार्केट मतलब अपना मार्केट छोड़ के जब हम अपने को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डाउ जोन्स से, डैक्स से, फॉर एग्जाम्पल हर्ष बोला चाइनीज मार्केट से, हैंगसेंग मार्केट से, ताइवान मार्केट से, तो हमें वो कोरिलेशन निकालना पड़ेगा हमारे सामने कौन सा मार्केट चल रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोग बोवेस्पा को ट्रैक करते हैं। बोवेस्पा इज ब्राजीलियन मार्केट। तो हम सब मार्केट को कंपेयर करके जाते हैं लास्ट में कि भैया अभी आउट परफॉर्मर कौन है, हम उसके साथ कैसा चल रहे हैं। तो ये हो गया, एक हो गया इंट्रा मार्केट जो हमारी मार्केट के हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पकड़ के जा रहे हैं, एक हो गया इंटर मार्केट जो हमने बात करी, एक हो गया इंट्रा मार्केट कि हमारे से जो अलग मार्केट्स है, क्योंकि ब्राजील इज कमोडिटी बेस्ड मार्केट, चाइना टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केट हो गया, चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड मार्केट हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन मार्केट्स ऑल टुगेदर। तो ये डिफरेंस पकड़ना पड़ेगा आपको अगर आपको कुछ समझना है बहुत बड़ा। Amit, is it not, just asking, I may be wrong also, but is it not vice versa? Intra-market, inter-market. Terminology doesn't matter. आपने जो explain किया, that is important. But just wanted to double check on that. I didn't get your point. No, so I was saying intra-market is within the same market. We are comparing two different sectors. इंटर or two मार्केट, different इंटर मार्केट वो इंटर मार्केट हो गया कोमल, वो इंटर मार्केट हो गया। मतलब अपने अंदर चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम चेकिंग बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं जो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो हो गया इंटर मार्केट एनालिसिस। इंटर मार्केट हो जाएगा मैं बैंक निफ्टी के किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को कंपेयर कर रहा हूँ रिलायंस से, हो गया इंटर मार्केट। विद इन निफ्टी इटसेल्फ whether HDFC is outperforming or whether Reliance is outperforming, तो मुझे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक देखना है कि if I am bullish, और अगर मैं बियरिश हूं तो मुझे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक देखना है कंपेयर टू, से फॉर एग्जांपल आई एम कंपेयरिंग रिलायंस एंड कंपेरिजन एचडीएफसी बैंक। सेम टाइम व्हेन आई एम कंपेयरिंग इंडेक्स, तो इंटर मार्केट एनालिसिस हो गया। इंटर मार्केट क्या हो गया, मैं अलग ही चीजों को पकड़ के जा रहा हूँ। उसमें मैं क्रूड को डाल सकता हूँ, गोल्ड को डाल सकता हूँ, सिल्वर को डाल सकता हूँ, गोल्ड सिल्वर कॉम्बो का रेशियो डाल सकता हूँ, नेस्डेक का डाल सकता हूँ, हर कंपैरिजन में कर सकता हूँ मैं। वो आगे आता है इंट्रा मार्केट जहाँ एक दूसरे से कोई कोरिलेशन नहीं, बट ये कोरिलेशन बहुत अच्छा वर्क करते हैं जब आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें समझने में भैया हमें अगर इतने साल लग गए कि रिलेशंस निकालने में, आज तो मियां बीवी का रिलेशन कोई नहीं समझ पाया, तो ये समझने में तो टाइम लगेगा ना आप लोगों को। तो थोड़ा स्टडी करो, जो हमने गाइडलाइन दे दी आपको उसको फॉलो करो, पक्का बहुत अच्छे एनालिस्ट बन जाओगे, तो उससे अच्छे ट्रेडर बन जाओगे क्योंकि आपको रिलेशन समझ में आएंगे। Absolutely. So we have बर्थडे बॉय ओवर हियर। आज बर्थडे बॉय सारे एक ही स्टॉक देगा जो कम से कम 200% परफॉर्म करे। 200% से कम परफॉर्म किया सबको पैसा ये देके जाएगा। इस पे छोड़ देते हैं आज। Amit, birthday boy is very smart. He joined us after 12 p.m. 12 a.m. Sorry. तो पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करके खत्म करके ही joined us. हाँ पक्का नहीं, पर वो मैं जो रेकमेंड करूंगा वो बर्थडे गिफ्ट ही रहेगा। 125 का स्टॉप लॉस है, चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे आप इन्वेस्ट करो। 125 के स्टॉप लॉस से लेना है, अशोक लेना है। 200 रुपये मेरे नेक्स्ट बर्थडे से पहले 26 जून 2000
23 200 रुपया दिखा देगा, पक्का है। क्या बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये सेक्टर में स्टॉप ये तो बहुत छोटा सा ट्रेड हुआ रे, हमें नहीं ऐसा नहीं एक भाई, नहीं 125 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। आपको चाहे आपको ट्रेड करना है, चाहे आपको इन्वेस्ट करना है, 125 पकड़ के रखो। अशोक लेलैंड 200 तो दिखाएगा ही दिखाएगा। मुझे तो 1 साल भी नहीं लगता है, 6 महीने में दिखाएगा। थोड़ा सा मार्केट सही हुआ तो अशोक लेलैंड 210 पूरा दिखाना चाहिए। आखिरी 145 के ऊपर क्लोज दे दो बस, आप उतना करवा दो। एब्सोल्युटली, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज तो अच्छा ही है। ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है। नॉट अबाउट सेक्टर बट ये मतलब ये वैसा है कि आप इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इफ यू आर ट्रेडिंग, इट इज ट्रेडिंग में थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि 5700 का लॉट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। पर हर डिप में अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं आप, अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत नीचे आया है, तो अशोक लेलैंड लेके चलना चाहिए, अच्छा रिटर्न देगा। और 100% ये 200 तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, जल्दी जल्दी। 6 मंथ्स भी मैं बोल रहा हूँ, बड़ा टाइम लग रहा है मुझे, उससे पहले दिखाएगा। हिमांशु, व्हाट इज करंट मार्केट प्राइस? आई थिंक 139 इन कैश एंड अच्छा ठीक है, 140 पकड़ 142 लेते हैं कैश in में। futures. हाँ हाँ ठीक है, 140 है 140 ना। पकड़, हाँ ठीक हाँ है, 140। हाँ 125 fair enough। 15 रुपए का स्टॉप है। आप ट्रेडिंग करो चाहे आप इन्वेस्ट करो, और अपसाइड टारगेट अच्छा है 200 205 So probably a मिलेगा। 10% stop loss, probably a 10% stop loss with a huge target. तो कैश में ट्रेड करना भाई, फ्यूचर लेके मत खड़े होना किसी के भी नाम का हमारा, ये कैश में ट्रेड कर लेना, मेरा एडवाइस ये रहेगा। और फ्यूचर करते तो कुछ उसमें हेज करके जाना, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका, जो मर्जी आप करो। सो वी हैव डॉक्टर आशु आल्सो ओवर हियर, एंड वी हैव वन ऑफ माय, जो उड़ता है, जो सबको उड़ा देता है, विकास। सो डॉक्टर आशु, फर्स्ट योर व्यू, देन वी गो टू विकास। मुझे 2 मिनट दीजिए अंदर। आपको तो टाइम ही टाइम है डॉक्टर साहब, आपको सब परमिशन। हाँ विकास, your views about Nifty, Bank Nifty, any other stock you are tracking? Vikas, if I'm audible to you. Komal, am I audible? यस 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 यू आर। You are audible. तो विकास कुमार, I think डॉक्टर Casey is साहब, not able to hear us. Yeah. डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट लेते नहीं मेरी, कौशिक आता नहीं, तो इनको तो मैं पर्सनल मैसेज पे कुछ ना कुछ अच्छा सा भगवान जी का भजन सुनाऊंगा, भगवान का ही भजन भेजूंगा, डोंट वरी। कुछ उल्टा सीधा दोस्त है तो कुछ भी बोल सकते हैं अपना बनता। अच्छा एक और चीज अबाउट द ये जो अच्छा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बता ना भाई, तू निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे साथ ट्रेड करता, तेरा व्यू बता भी। तू निफ्टी नीचे से मुझे, लौट था। हाँ निफ्टी 60,050 तो लगता है मुझे। इस एक्सपायरी से पहले 16,050, 16,150, 16,200 तक भी जा सकता है। उसके बाद फ्रेश व्यू लेना पड़ेगा, पर इतना तो जा सकता है। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा कमजोर लगता है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी इतना श्योर नहीं हूँ मैं, पर निफ्टी में थोड़ा सा कन्विक्शन ट्रेड यही आ रहा है। 16,050, 16,150, 200 तक भी जा सकता है। वहाँ पे एक बार अगर किसी की पोजीशन है लॉन्ग, तो एक बार बुक करके बैठना चाहिए, फिर देखना चाहिए क्या वहाँ से नेक्स्ट देखेंगे कैसे रहा। So people who have joined late, again I repeat my levels, as simple as that. If market stays above 15,850, 15,900, and if it gaps up, जो लग रहा है कि शायद मार्केट गैप अप मार देगा, लग रहा है, गारंटी किसी चीज की नहीं हो, डाउ जोन्स को देख के खुश मत हो जाना। अगर मार्केट गैप अप मार देता है 15,850, 15,900 लेवल का, अगर सस्टेन करके नेक्स्ट 2 कैंडल कंटिन्यूस उसके ऊपर बनाता है, तो लॉन्ग करना
5950 ब्रेक कर देता है तो 5950 के ऊपर अपने पास जो गैप जोन है 16200 तक का अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, तो आप गैप जोन चेक कर सकते हो, दैट इज ऑलमोस्ट एट 16175। मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ 16200, क्योंकि 16000 पे 71 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ठीक है। अगर वो नहीं होता है, अगर वो 71 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वाला ओपन इंटरेस्ट घटाने चला जाता है तो प्रॉब्ली यू विल हैव अ वेरी गुड ट्रेड ऑन द अपसाइड। सेम टाइम ऑन बैंक निफ्टी you have the same levels, where you do not to worry. Probably that levels are about 33,800. If it stays above 33,800, probably you might hit a gap zone of 34,300, but 34,200 is 20 days moving average. तो वहां पे जाके क्या रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा, गैप जोन को सस्टेन करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता। सो ये दो जोन है हमारे पास आज के दिन में। सपोर्ट नीचे में 33,300 बैंक निफ्टी में, 15,600 650 का लेवल निफ्टी में। स्टॉक अच्छे जो दिखते हैं प्रॉब्ली रिलायंस, इफ डजंट ब्रेक्स बिलो 2450, कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 2450 और इवन बिलो 2470। गो लॉन्ग द सेम लेवल्स दैट आई मेंशन्ड फॉर अ प्रोबेबल टारगेट of 2600 2700. Other stock that I'm tracking is all the auto companies. For Maruti, stop loss would be 8100. If it sustains above 8200, price is 8350. But still I'm saying if it stays above 8200, क्योंकि वो मेरे ओवरबॉट जोन में आ चुका है। डिप भी आता है 8200 कहीं दिखता है आपको, बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, सब्जेक्ट टू कोई रिवर्सल कैंडल बने। रिवर्सल कैंडल नहीं बने तो हमें नहीं लेने का। हीरो मोटो प्रॉब्ली 2900 3000। बजाज का कल रिजल्ट है, बजाज ऑटो की बात कर लो, बजाज ऑटो में सेम वही व्यू कि प्रॉब्ली एट 3800 लेवल्स इफ आई एम गोइंग लॉन्ग, माय स्टॉप लॉस वुड बी बिलो 3750, प्रॉब्ली टारगेटिंग टुवर्ड्स 4000 लेवल्स, प्रॉब्ली टारगेटिंग टुवर्ड्स 4000 लेवल्स। And the last stock that I'll like to recommend over here is Bajaj Finserv. Bajaj Finserv में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है शॉर्ट कवरिंग का, सेम टाइम बजाज फाइनेंस में भी बना है। तो ये दो स्टॉक को कल ट्रैक करो, अगर हर 5 मिनट में नया कैंडल बना रहे हैं तो उन पे लॉन्ग जाना, शायद पैसा बन जाएगा। हमें ट्रैक करना पड़ेगा हर 5 मिनट की कैंडल को, इंट्राडे करने में घुसना, और वो इंट्राडे कंटिन्यूसली आर्ली पर भी आ गया तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दीज आर 5-6 स्टॉक्स, और बाकी में बहुत सारे स्टॉक बोला था पहले, वो रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये स्टॉक्स है मेरे पास, एंड वी हैव चिराग आल्सो ओवर हियर। एंड विकास, इफ यू आर एबल टू लिसन टू अस, वी कैन प्लीज चिप इन। हाँ, मैं सिस्टम पे आ गया हूँ, आई कैन कंट्रीब्यूट, मतलब व्यू हल्का सा। या डॉक्टर साहब, गो अहेड प्लीज। हाँ, आप लोगों ने जैसे डिस्कस किया वैसे ही सेम मुझे लग रहा है। मतलब मैं लॉन्ग साइड में ही प्रेफर करूँगा ट्रेडिंग, और निफ्टी में वही है, गैप की तरफ अगर हम जाते हैं, ये लेवल ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे हर्ष जी ने भी डिस्कस किया, कि ये बॉटम टाइप बन रहा है, और जो 700 वाला मार्क था उसके ऊपर हम मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे बहुत जल्दी, हो सकता है कल ही, जैसे एक्सपेक्टेशन है। तो एक स्प्रिंग टाइप का बन रहा है या नीचे, फिर ऊपर की तरफ अगर कंटिन्यू करता है मोमेंटम तो 16,200 तक पॉसिबल है, और फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अगर कंटिन्यूएशन मिलता है देन वी कैन हेड टुवर्ड्स 16,800 ऑल्सो। वो थोड़ा सा लंबा होगा, बट तब तक अपन कंटिन्यू करेंगे स्टेप बाय मैनर में, धीमे धीमे। ऐसी बैंक निफ्टी में भी लग रहा है पॉजिटिविटी। बैंकिंग में दो स्टॉक हैं जिसमें मैं शायद लॉन्ग लूंगा अगर सस्टेन करते हैं तो, आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक। और बैंक निफ्टी भी 34,500 तक की पॉसिबिलिटी है कि हमें मिले ये लेवल। थैंक यू। डॉक्टर साहब, your views about crude? क्रूड में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब फॉल हुआ था उसके बाद अब रुक गया है फॉल, और ये कंसोलिडेट हो रहा है।
तो अभी तो मैं इसमें शॉर्ट नहीं करूंगा, वेट करूंगा। ये जोन कंसोलिडेट है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है इसके बीच में ही हम, जो स्विंग लो बना था दैट वाज 7966, और काफी मतलब 2-3 दिन से ना एक रेंज में ही मूव कर रहा है। एनजी मैंने जरूर शॉर्ट किया था, तो एनजी थोड़ा सा वीक है, बट क्रूड में अभी वेट करेंगे, मतलब अभी एक अच्छा ट्रेड नहीं है इसमें, बिकॉज इट इज अंडर कंसोलिडेशन। आवाज नहीं आ रही है मुझे। आ रही सर। ओके ओके, तो यही है क्रूड के बारे में अभी तो फिलहाल। Send you request. Vikas, if you are there. हाँ अमित भाई, कुछ इशू था, पता नहीं, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। ओके, तो क्या व्यू लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई स्टॉक ट्रैक करता हो? तो मुझे पता तो बैंक निफ्टी नहीं करता ट्रैक, फिर भी मेरा काम है पूछना। नहीं, बैंक निफ्टी करता हूँ आजकल। जब से ऑप्शन में आया हूँ तब से करना पड़ता है। तो चल ठीक है। बैंक निफ्टी में है, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे राइट, फ्राइडे को या फिर थर्सडे को, 33,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आता है तो मेरे को लगता है 34,400 एंड 34,800 की तरफ हम लोग जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे। एंड निफ्टी में 15,800 के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो आई थिंक 16,400 16,200 400 की तरफ हम लोग जा सकते हैं। स्टॉक में मैं एक स्टॉक अभी कैश में ऐड किया था और उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, रोलेक्स रिंग, ये देख लेना। विकास, रोलेक्स रिंग का लोगों को प्राइस भी नहीं पता रहेगा, तो जब हम कोई स्टॉक से बात करें ना, तो उसमें कल एंट्री तो अपन ने ले लिया, कहाँ स्टॉप होना चाहिए, टारगेट अपन छोड़ देते। ओके, सो ट्रैक पॉइंट एंड फिगर्स, मैं तो उसको फिंगर बोलता हूँ क्योंकि तुम फिंगर ही करके जाते हो, किसी को नीचे भी आएगा तो करके जाते हो। याद है डेकलॉग में अपन मिले थे जब, मैं बोला तुम्हारा फिगर नहीं होता, पॉइंट एंड फिंगर होता है, तुमने कीड़ा कर दिया तो वो होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी तुक्का लग जाता है और कुछ नहीं है। एक ये होता है ना, बोलता भाई ऐसे तुक्के हमारे रोज लगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे हमारे तुक्के ऐसे रोज लगे, हमें ऐसे तुक्के ही चाहिए होते हैं बाजार में। सो रोलेक्स रिंग का अगर आप मेरे से स्टॉक पूछते हो तो समवेयर अराउंड क्या बोलते हैं 1500 के आसपास मेरा स्टॉप है, एंड आई थिंक 1640 के आसपास क्लोज आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो 1500 के आसपास मेरा स्टॉप है, एंड आई विल बी लुकिंग समवेयर अराउंड 2100 एंड 2500 इस पे। So Vikas, overall view about market, is it bullish, bearish as per your RS? नहीं, RS वगैरह छोड़ दो, उस दिन हम लोग वही बोल रहा हूँ, थर्सडे या फ्राइडे को हम लोग बात किए थे, चिराग भाई भी थे उस दिन, तो 33,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता है, मेरे लिए बैंक निफ्टी इज नॉट एट ऑल बुलिश until and unless we get a closing above 33,800, then we'll review once again, but till we close below 33,800, bank nifty is definitely bearish for me. At the same time nifty जब तक 15,885 90 के ऊपर नहीं क्लोज आता है, I am still I'll be bearish on nifty and bank nifty. Vikas, just a simple question, what's your count about long term, मतलब medium term to long term of nifty bank? I think मतलब आई थिंक, बट वही होता है ना कि आप ट्रेड वही करते हो जो आपको दिखता है, आप सोचते हो उसको ट्रेड नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर आप वैसे हाइपोथेटिकल अगर मेरे से पूछते हो तो मेरे को भी लगता है कि हम बॉटम आउट हो रहे हैं,
बट फिर वही चीज होती है, बिलीव योर चार्ट, एवरीथिंग इज बकवास, राइट? सो मैं सोचता क्या हूँ ये मैटर नहीं करता है, मेरे को दिखता क्या है ये मैटर करता है। सो अभी तक मेरे को बॉटम दिखता नहीं है, जब दिखेगा तो देखेंगे फिर। लेकिन अगर आप मेरे सोच के बारे में पूछते हो तो हाँ, मेरे को भी लगता है कि बॉटम आउट हो रहे हैं हम। एक एनालिस्ट के अंदर से ना सब कुछ निकालना है ना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। वही होता है, हम रोज का चार्ट देखते हैं, बट हम जब लॉन्ग टर्म भी स्टडी करते हैं ना, कहीं ना कहीं व्यू बनता है ऐसा कि यार शायद हो सकता है। गारंटी तो किसी के पास कुछ चीज की नहीं है, गारंटी तो अपने पिताजी अपनी नहीं दे मार्केट में। अगर मार्केट में खड़े हो जाए, अपने पिताजी को बोला जाए कि इस पे 1 रुपया बेट करोगे मार्केट के लिए, अपने पिताजी बोल देंगे है सट्टा करता है, राइट? तो लास्ट में तो वही चीज है ना कि हम जो कर रहे हैं कि हम उस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम उसपे, जैसे हर्ष बोलता है कि हमें ट्रस्ट है उस चीज पे कि हो सकता है, नहीं होगा तो हम व्यू बदल लेंगे, हमारा कौन सा टाइम लगता है, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है उसमें। हम तो रोज के ट्रेडर्स हैं, हम रोज का व्यू पकड़ते हैं, बदलते हैं, वो हम बदल के चेंज भी कर देंगे। की बात करेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बात करते हैं ना, जैसे तू 0.25 की बात करता है, 1% की बात करेगा, 3% की बात करेगा, तो वो वही 1% 3%, क्योंकि तू रैंक को फॉलो करता है, P&F फॉलो करता है। सो आई नो यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब। पीपल हु डोंट नो अबाउट विकास, आई कैन रेस्ट बेट ही नोज वेरी मच गुड, क्योंकि जब हम सिल्वर साथ में ट्रेड कर रहे थे ना, इसने मुझे एग्जिट दिया कि मैं भाई 74 पे एग्जिट हो जाओ, तो तूने बोल दिया, अपने बटन दबा दिया, किस्सा खत्म। We were trading that from 48,000 to 74,000 within a span of 15 days, if I'm not mistaken, Vikas, right? हाँ, 15-14 डेज था बस। हाँ, वही मैं तो 40 दिन बहुत बड़ा दे दिया, 15 दिन में वो टारगेट आ गया। काय को दिमाग लगाने का, तेरा चार्ट क्या बोल रहा है? मैंने मुक्ता को पूछा, मुक्ता ने सेम चीज बोली मुझे कि सर यहाँ से नहीं दिखता। ठीक है, खत्म करो इसका किस्सा। अपने का 1 लाख का टारगेट ले, 2 लाख का टारगेट ले, 5 लाख का टारगेट ले। तो जिस समय बट हम लोग एग्जिट किए थे उस समय 1 लाख का टारगेट बजट था। तो 1 लाख का टारगेट तो पब्लिक डोमेन में था कि भाई 1 लाख नहीं 2 लाख मार देगा अभी। मुझे भी लगता था 7 बाद इतने साल बाद ब्रेकआउट दिए तो पक्का मार देगा। पर तुझसे पूछा, मुक्ता से पूछा, इतने लोगों से पूछा, सबने बोला भाई ये खत्म कर, हो गया ना अपना पैसा, खत्म करो ये किस्सा। सो एनी एंडिंग व्यूज फ्रॉम विकास? निफ्टी बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। जैसा बोला 33,800 के ऊपर अगर आता है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे को लगता है कि अगर वहां पे आता है तो आई थिंक 800,000 पॉइंट का मूव वहां से मोस्ट लाइकली 1-2 दिन में ही मिल जाएंगे। तो ऊपर की तरफ देखूंगा बैंक निफ्टी अभी फिलहाल तो, मतलब जिस हिसाब से अभी चार्ट एंड एवरीथिंग इज राइट। तो बाकी तो यू नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा और 5 मिनट के बाद क्या चेंज हो जाएगा पता नहीं। लेकिन यस, फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से मेरे को मतलब काफी अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी स्पेशली। एंड निफ्टी एंडिंग रिमार्क्स? वही निफ्टी में भी सेम चीज 15,800 का अगर गैप अप होता है। ये इको बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों। नीचे का स्टॉप लॉस क्या रखेंगे अगर हम लॉन्ग भी करते तो? नीचे का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में समवेयर अराउंड 33,000 क्या बोलते हैं 550 के आसपास नीचे का स्टॉप लॉस है फिलहाल। और निफ्टी में 1 मिनट, निफ्टी मैंने बंद कर दिया था, 1 मिनट देख लेता हूँ। निफ्टी समवेयर अराउंड 15,600। एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट। हर्ष, योर एंडिंग कमेंट्स 2 मिनट में सिंपल। हाँ, सो अबाउ 15,870 16,200 तक दिखता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये वीक के लिए, आई मीन नेक्स्ट 2 दिन के लिए। एंड if we go below 15,700 670 again, then probably bullish we would I have to discard. 600 के नीचे जाएगा तो फिर शायद बेरिश व्यू के बारे में सोचेंगे। अभी तो है नहीं कोई बेरिश व्यू। और फॉर बैंक निफ्टी अबाउ 33,800 up to 34,300 34,500
और 33,500 के नीचे जाएगा तो आई मीन दैट्स वुड बी द स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ। आई मीन जो मैंने ऑलरेडी कैरी किया है, बट ऑब्वियसली ऊपर खुलता है तो ट्रेलिंग होगा। और below 33,400 probably will have to discard short term bullish view ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फेन डॉक्टर साहब, आपका फाइनल कमेंट एंड सीके इफ यू कैन ज्वाइन जस्ट फॉर 2 minutes टू गिव योर एंडिंग रिमार्क्स। डॉक्टर साहब, आपका फाइनल रिमार्क्स। फाइनली मतलब वही जो लेवल हर्ष ने बोले, हर्ष जी ने बोले, वही है मेरे भी, सेम टू सेम। मतलब वी आर इन अपसाइड। चिराग जी को सुनते हैं। तो सबका लास्ट में एक व्यू जो मॉरल ऑफ द स्टोरी बनता है ना, मोटा मोटी below 15,600 we again enter into bearish territory. If it stays above 15,600 15,700 probably we are into bullish territory. चला जा ना, वॉशरूम चला जा। सॉरी, आई जस्ट लेफ्ट आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, तो हेडफोन पे डाल के सुन रहा हूँ घर जाते जाते। अरे तो 2 मिनट में व्यू दे दो, बाइक चला रहा हूँ। बाय बाय। अच्छा बाय बाय। इसको अगली बार से ज्वाइन नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे जब ये ऐसी बात कर दे ब्लॉक, तो, अभी कर, हिम्मत है कर दे। अरे तुझे ब्लॉक करके मैं मेरा that was a kidding part, we keep doing. So moral of the story is below 15,600 15,700 approximate levels probably this rally have ended. जो भी बाउंस बैक आना था वो बाउंस बैक खत्म हो गया। We are still in a bearish territory, we are not in a bullish territory, as simple as that. Unless we break above 16,400 16,500 levels, हमें ठीक है शॉर्ट टर्म में बाउंस दिख रहा है, बाउंस को प्ले करके आओ, ओवरनाइट कैरी मत करो। ओवरनाइट कैरी करना है तो कुछ स्प्रेड बना लो, एज सिंपल एज दैट। स्प्रेड बना के चले जाओ, एटलीस्ट आपका लॉस कम होगा। सेम टाइम बैंक निफ्टी 33,200 33,300 नीचे का स्टॉप पकड़ लो, वो ब्रेक हो जाता है तो वापस 32,150 कोई बहुत दूर नहीं है। 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं एक दिन में करने को। 33,100 ब्रेक्स अप, अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे। द रिवर्सल पॉइंट ऑन बोथ द इंडेक्सेस इज 16,800 फॉर मी एंड 36,000 on bank nifty. That will confirm probably a short term bottom is in place. Probably a short term bottom is in place. अब वहां से कितना चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। बुलिश स्टॉक 3 ही है मेरे इंडेक्स में, मेरे रेडार में जो ओवरऑल बुलिश है। ओवरऑल की बात कर लो, 1 इज आईटीसी, सेकंड इज एम&एम, थर्ड इज रिलायंस। इसके अलावा कोई 3 मेरे पूरे रेडार में स्टॉक भी नहीं है कि सबसे बुलिश स्टॉक। अगर मार्केट चलेगा तो स्टॉक शायद आउट परफॉर्म कर देंगे। अदानी भाई, अदानी भाई मैं टैग भी नहीं करता, मेरे तो सिस्टम में मना है कि अडानी को हाथ भी नहीं लगाना है, तो मुझे पता ही नहीं अडानी का भाव क्या चलता है। मैं तो कभी कोमल को पूछ लेता हूँ या चिराग को पूछ लेता हूँ, भाई इसका भाव क्या है, तो मैं ट्रैक ही नहीं करता, तो मुझे फायदा नहीं ना उस चीज का। मुझे मना मैं है। भैया अब अदानी पे कुछ नहीं बोल रही। मेरी बहन सुन, मुझे तो अडानी का भाव क्या को नहीं पता, मैंने आज तक ट्रेड नहीं किया। एक बार गलती से ट्रेड किया, शायद मैंने अडानी को हाथ लगाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट ही हुआ, पर मैं अडानी को हाथ नहीं लगाता। भाई मेरे से टुडे व्हेन आई मेट फिदाई सर, मतलब आई ओनली आस्क्ड हिम कि अदानी ग्रुप पे क्या करना है, तो बस उन्होंने आंसर दे दिया। और उसके बाद से अब मतलब ही इज द लेजेंड, तो जो वो बोलेंगे वो मानना ही है। बस उन्होंने जो बोल दिया काफी है, ठीक है। सो एंडिंग रिमार्क इज ओनली मार्केट इज इन अ शॉर्ट टर्म बाउंस फेज. It's not that market have turned around. Market will only turn around once it breaks about 20 days moving average. आप 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो, उसके ऊपर 2 दिन सस्टेन करता है तो शायद मार्केट ने शॉर्ट टर्म बॉटम मार दिया। अगर नहीं सस्टेन करता है, वहां से रिवर्सल मार देता है, 20 डेज के मूविंग एवरेज का ऊपर का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना और मार्केट को शॉर्ट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो खा सकते हैं ना दोनों इंडेक्स में। बैंक निफ्टी में 100 खा लेना और बैंक निफ्टी में 300 खा लेना, उसके हिसाब से अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना लेना। हमेशा स्प्रेड बना के जाना। स्प्रेड बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जो आपको पसंद आए वैसा कर लेना। तो नटशेल स्टोरी यही है कि बाउंस है, दिस इज नॉट टर्न अराउंड। टर्न अराउंड अलग चीज से दिखेगा, हो सकता है धीमे धीमे ये टर्न अराउंड दिखाएगा। तो जब तक चल रहा है बैठे रहो गाड़ी में,
जैसे हम बोलते हैं कि भाई विरार से गाड़ी में बैठा तुझे चर्च गेट तक जाना है, अगर सीट मिली हुई है, सीट क्यों छोड़ने की? सीट छोड़ने की नहीं, चुपचाप बैठे रहने का, ना बोरीवली में उतरने का, ना दादर में खड़ा हो जाने का, चुपचाप बैठे रहने का, पूरा सीट का मजा लो। लगता है कि भाई बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया तो बॉम्बे सेंट्रल उतर जाओ और या खड़े हो जाओ। तो जैसा फेस चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से काम करो और कुछ मत करो। सो विद दिस एंडिंग रिमार्क एंड दिस स्पेस, जय हिंद। आज भी ऑलमोस्ट 400 लोग ज्वाइन हुए थे, मतलब इवन इफ आई डू अ स्पेस एट 11:40 पीपल कम्स एंड ज्वाइन। हम देखो कल की बात करते हैं, 4 दिन बाद क्या होगा। मार्केट 15,000 जाएगा, मार्केट 18,000 जाएगा, 17,000 जाएगा।